Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce CCSP, we'll be continuing with our chapter number 2 from SP, that is transfer and transmission of share. Before starting today's video, let us quickly recall what we have learned or discussed till now. In the previous part of the video, we have learned about the meaning and concept of transfer of share, and then we learned about transfer of physical share, full share, total share or partial share. Today we will be learning about procedure for transfer of dematerialized share. Okay, before starting the session, let us quickly know what is dematerialized share. So we can say the share which are held in electronic form is known as dematerialized share. Okay, let us start. A shareholder may keep his share in physical form, but according to new provision, he cannot sell his share in physical form. कोई भी एक शेयर होल्डर फिजिकल फॉर्म में शेयर रख तो सकता है किसी भी कंपनी के, लेकिन अगर उसको सेल करने हैं तो फिजिकल फॉर्म में शेयर सेल नहीं कर सकता. If he want to sell his share, he has to go for dematerialized process. Selling के लिए dematerialized process ही use करना पड़ेगा. Demat share means to convert physical share in electronic form in a specified way. The investor has to open a demat account with depository participant. सबसे पहले depository participant के साथ एक demat account खुलाना पड़ेगा. In India, a depository participants are NSDL, that is National Security Depository Limited, or CDSL, that is Central Depository Services Limited. दो बॉडीज है जो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट करती है, वर्क करती है. एक है NSDL, एक है CDSL. Okay, on the behalf of this institution, PSU, that is public sector undertaking, banks, private banks, other financial institutions open demat accounts. After opening this account, the said institution provide an instruction slip to account holder. It is used by account holder for purchase of or sales of security. Account opening के बाद एक instruction slip आती है, उसको हम purchase of securities और sales of securities के लिए यूज कर सकते हैं. उसका सैंपल हम आगे देखेंगे. The company can observe its shareholder and their holding on the website provided by NSDL CDL. और NSDL CDL की जो वेबसाइट है उस पर कंपनी उनके शेयर होल्डर्स देख सकती है. हाँ, कंपनी उसमें कोई चेंजेस कर सकती नहीं है. क्लियर? सो दिस इज द सैंपल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप. ऐसी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है, कंपनी का नाम आ जाएगा, ओके. दिस इज द इंस्ट्रक्शन स्लिप. यहाँ शेयर नंबर्स, ISIN नंबर, सिक्योरिटी नेम, फिगर्स में कितने, वर्ड्स में कितने, ओके, रेफरेंस नंबर कुछ हो तो सारी डिटेल्स इसमें परचेज की और सेल्स की फिल कर दी जाती है. क्लियर? A person who want to purchase share has to pay the price of share and stamp duty along with the brokerage. अगर किसी को शेयर परचेज करने हैं तो प्राइस ऑफ द शेयर, स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज, तीन चीजें पे करनी होगी. टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एंड परचेज शेयर्स आर क्रेडिटेड इनटू हिज अकाउंट. टोटल अमाउंट जो परचेज की है वो अकाउंट में से उतने पैसे ले लिए जाएंगे और उतने शेयर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे. Shares are increased in shareholders account. Similarly, if shareholder sell his shares, the amount of sell after deducting brokerage, tax and other charges is deposited to his bank account and shares sold are debited to his demat account. अगर किसी को सेल करना है तो जो अमाउंट ऑफ सेल है, उसमें से ब्रोकरेज और टैक्स और बाकी चार्जेस डिडक्ट करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जो शेयर है वो उसके डीमेट अकाउंट में डेबिट यानी कि माइनस कर दिए जाएंगे. ओके, द शेयर्स आर क्रेडिटेड और डेबिटेड टू अ पर्सन्स डीमेट अकाउंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन शेयर्स आर परचेज्ड और सोल्ड इन दिस वे, द कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर इट. कंपनी हैज नथिंग टू डू विद इट. द होल प्रोसीजर इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन व्हिच फंक्शंस एज एजेंट ऑफ NSDL or CDSL. The company can only observe
its newcomer shareholders or outgoing shareholders on the web page. पूरे प्रोसेस में कंपनी का कोई रोल, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, सारा कंट्रोल एनएसडीएल और सीडीएसएल के जो एजेंट है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनका रहता है। कंपनी सिर्फ नए शेयरहोल्डर्स को आते हुए और किसी शेयरहोल्डर को जाते हुए देख सकती है, वो भी एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइट पे। क्लियर? नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर के लिए सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है? ट्रांसफर ऑफ शेयर is transfer of ownership. The secretary has to perform his duty properly. He has to look after after the transfer of physical share. There should be no litigation in future, nor should the provision of Companies Act 2013 be ignored. If such provisions are ignored, then secretary and other responsible person found guilty can be punished. Transfer of share एक transfer of ownership है asset का, okay, shares किसी के लिए asset भी हो सकते हैं, तो secretary को उसकी duties properly perform करनी होगी। कंपनी एक्ट 2013 को इग्नोर नहीं किया सकता। अगर कोई प्रोविजन इग्नोर हुए हैं तो कंपनी सेक्रेटरी या जो पर्सन लायबल थे, डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी मैनेजर, वो पनिश भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या क्या ड्यूटीज है कंपनी सेक्रेटरी की देखते हैं। फर्स्ट इज टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर फॉर्म। सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट carefully. He has to verify number of shares, types of shares, signature of shareholder and other essential details as per provision. तो पहली चीज आती है कि भैया वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो ट्रांसफर फॉर्म दिया है वो डिटेल्स में जो फिल करिए सही है, नंबर ऑफ शेयर जितने फिल किए उतने शेयर उसके पास है या नहीं है, टाइप्स ऑफ शेयर सही लिखे या नहीं लिखे, सिग्नेचर कंप्लीट और करेक्ट है कि नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैम्प एंड फीस। Secretary has to verify market value of the share mentioned in share transfer form. He also verify whether the stamp duty affixed by shareholder is according to value of the share. सेकेंड चीज देखनी होती है कि मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है और उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी शेयर होल्डर ने पे करी है या नहीं करी। ओके, नेक्स्ट इज सिग्नेचर ऑफ विटनेस। शेयर ट्रांसफर के लिए सिग्नेचर ऑफ विटनेस एसेंशियल है, तो सेक्रेटरी को ये भी देखना होगा कि सिग्नेचर ऑफ विटनेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज रिसीट ऑफ शेयर ट्रांसफर। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, अ रिसीट शैल बी इश्यूड प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स आर सेटिस्फैक्टरी। वेरीफाई करने के बाद डिटेल्स, ट्रांसफर फॉर्म, नंबर ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर, सिग्नेचर, उसके बाद स्टैम्प और फीस देखते हैं। अगर वो सही है और सिग्नेचर ऑफ विटनेस है, मतलब सब चीजें करेक्ट है, तो एक रिसीट इश्यू होगी कि भैया आपके द्वारा भेजा गया फॉर्म हमें मिल चुका है, कंपनी इशू करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मिल चुका है और डिटेल सारी सेटिस्फैक्टरी है। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर फॉर्म इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी एंड करेक्ट, देन शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड। अ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इज पास्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सब कुछ सही रहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की होती है और वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, अप्रूव। क्लियर? नेक्स्ट इज एंट्री इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। शेयर ट्रांसफर के ग्रांट मिलने के बाद नेसेसरी एंट्री हो जाती है सेक्रेटरी के द्वारा रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर एक अलग होता है, उसमें शेयर ट्रांसफर की एंट्री होती है। नेक्स्ट स्टेप इज शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंटेड बाय शेयर होल्डर, इट इज फॉलोड बाय द नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। नेक्स्ट एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री होगी। पहले होगी शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री, उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री होगी, उसके बाद नोटिस इश्यू करना होगा शेयर परचेजर और शेयर बायर को कि भैया वो नोटिस ऐसा इशू होगा कि शेयर परचेजर को इशू होगा कि आपने शेयर इशू के लिए ट्रांसफर के लिए दिए हैं बायर को कि भैया आप इतना परचेज करना चाहते हैं, इतना ये है, और अप्रूवल लेना होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इट इज ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू प्रिपेयर न्यू शेयर सर्टिफिकेट। नए शेयर सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे नए शेयर होल्डर के नाम से। ओके, और इसके बाद का स्टेप है कि न्यू शेयर सर्टिफिकेट बनने के बाद जो न्यू शेयर होल्डर है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, जो आपको रिसीट इशू की गई थी अर्लियर उसको दिखा के,
और उसके एड्रेस पर डिस्पैच भी कर दिए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज टू ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ सेक्रेटरी हैज टू कंफर्म हिमसेल्फ दैट नो, सेक्रेटरी को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन का वायलेशन नहीं हुआ है इस ट्रांसफर में। ये सेकेंडरी कौन करेगा क्लेम, कंफर्म कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। क्लियर? सो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि एक सेक्रेटरी को क्या क्या ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर, सिग्नेचर चेक करेंगे, स्टैम्प फीस ड्यूटी सही है कि नहीं चेक करेंगे, सिग्नेचर ऑफ विटनेस सही है कि नहीं चेक करेंगे, सब डिटेल सही है तो एक रिसीट इश्यू कर देंगे शेयर ट्रांसफर की। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना, ट्रांसफर शेयर अप्रूव कराना, फिर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री, ठीक है। फिर अप्रूवल के लिए नोटिस देना शेयर ट्रांसफर का शेयर परचेजर या बायर को, फिर नया शेयर सर्टिफिकेट बनाना, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना और एंड में कंफर्म करना, क्लेम करना कि कोई भी प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वायलेट नहीं हुआ है। क्लियर? So students, in today's session we have learned about duties of secretary and